हेलो फ्रेंड, आई एम अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक फोबिया। इस चैनल पर हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट लिया है और 694 टारगेट हो चुके हैं और आप लोगों का अभी फैमिली 694 फैमिली बन चुका है और आप लोग जल्द से जल्द 1000 टारगेट हमारा पूरा करें सब्सक्राइबर का। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ये वीडियो को सुने। Established in 1976, Tega Industries Limited is a global leader in devising and delivering solutions for the mining, mineral beneficiation, bulk material handling, and slurry transportation industry. At Tega, we strongly believe in giving the utmost importance to the environment, health, and safety, along with a sound integrated management system. Tega's broad spectrum of machineries enables manufacturing of products that cater to mining, mineral processing, screening, grinding, material handling, and beneficiation of minerals. With a precision hole technology and smart voltage height control, the plasma cutting machine facilitates efficient and high-quality cutting of medium-sized thick sheet metals. Pug cutting and manual cutting facilities are available to cater to complex designs and geometries. Zero-defect manufacturing is facilitated by a thorough self-inspection and sampling-based inspection system. Batch-wise compound testing assures the quality and integrity of processed rubber sheets. Tega's vibrant and diverse employee workforce, coupled with its world-class manufacturing facility, ensures delivery of comprehensive solutions that enhance performance and minimize downtime at the customer's site. An extensive variety of molds at Tega's Mold Shop facilitates manufacturing of several types and sizes of liners and screens. In-house CNC and conventional machines enable rapid manufacturing of mold parts in addition to externally purchased parts. With the provision of airless blasting and manual blasting, fabricated reinforcements ranging from simple to complex geometries are handled and processed. A temperature and humidity controlled cementation facility ensures high-quality coating of reinforcements. A high-quality rubber blank extrusion and milling system is complemented by a compression molding system, where the PLC-controlled presses range from 6. Tega's manufacturing facilities in India, South Africa, and Chile, along with its sales and distribution network, is spread across 16 countries and consists of 1,600 employees. With a sound reputation for product quality and durability, as well as after-sales services, Tega has established a strong global presence by exporting its products and services across 72 countries and amongst 700 clients, and is continually growing in the mining consumable space. Our multinational employee base, cutting-edge technical expertise, and 40-plus years of experience combine to create value for our customers. At Tega, partnership is not just a word, it's a commitment, responsibility, and a sense of shared destiny. तो आप लोगों ने देखा ये वीडियो और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बट थोड़ा लाइन चली गई है। आपको मेरे फ़ोटो नज़र नहीं आ रहे होंगे, बट स्क्रीन नज़र आ रही है, आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रेजेंटेशन में जो भी बातें हैं वो आपको 3 मिनट में मैंने एक वीडियो के माध्यम से, जो ऑलरेडी टेगा इंडस्ट्री के वेबसाइट, टेगा इंडस्ट्री के यूट्यूब वाले चैनल में डाला हुआ है, मैंने वहाँ से एक वीडियो को दिखाया
और वो उससे मैंने ये समझाना चाहा कि टेगा इंडस्ट्री 1978 में तो ज़रूर आई है, स्केगा के साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन की थी। फिर उसके बाद 2011 में उन्होंने क्या किया, उसको डायरेक्ट अपने कंपनी के पूरे स्टेक को खरीद कर और अपने में मिला लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2001 में, 11 में नहीं, 2001 में, 2006 में फिर टेगा इंडस्ट्री फिर एक नई कंपनी बनाई एंड 10 में फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्विजिशन किया, 11 में फंड राइज किया, फिर 13 में एडिशनल पैटेंट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का किया, फिर ट्रेडमार्क लिया, कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन था उसका ट्रेडमार्क लिया उन्होंने 2019 में बिफोर आईपीओ। देन 2021 में ये अपना आईपीओ लेकर आया है मार्केट में और इनको अच्छा रिस्पांस भी मिला था, क्योंकि एज अ कंपनी जो मार्केट में अभी लाइक कर रही है, बट टेगा इंडस्ट्री इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। एंड 2023 में ये फिर अभी जो रिसेंट के समय में चल रहे हैं, 2023 में इन्होंने फिर से एक एक्विजिशन किया है, जो कि टेगा इंडस्ट्री मैकनली मिनरल्स लिमिटेड के साथ ये कंपनी को डायरेक्ट खरीदते हुए नज़र आई है। और देखिए आप फोकस करती है बहुत अच्छे सेगमेंट में, सेल्स मैनेजमेंट है इनके टीम में। आवर पर्पस यहाँ पढ़ सकते हैं आप, 5 पिलर इनका क्या है वो पढ़ सकते हैं। ये सारा चीज़ है जो आप प्रेजेंटेशन में भी देखे होंगे, एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई थी उस वीडियो में। एंड उसी वीडियो का एक थोड़ा सा मैं माइंड मैप ले रहा हूँ आपका। ये फरवरी 2022 की कॉल है, ठीक है। तो इसे मैं हॉलिस्टिक चेन आप देख सकते हैं कि टेगा इंडस्ट्री फोकस्ड कंजूरेबल्स वाले सेगमेंट में फोकस, और उसको अगर मिला देने के बाद मटेरियल, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक, ऐसा ही फुल फॉर्म आता है इनका, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करके फुल फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इक्विपमेंट लॉजिस्टिक ऐसे करके आता है। तो इनको मिला देने के बाद तब इनसे ये स्टेबल कंपनी बन जाती है, ठीक है, ये दोनों बिजनेस को मिला देने के बाद। एंड फिर भी कंपनी आगे के लिए प्रोस्पेक्ट ढूंढ रही है, जिसके वजह से कंपनी आईओटी सेगमेंट में भी काम कर रही है। कंपनी अपने दिन चार चुगनी से भी तेज़ी से काम करते हुए नज़र आई है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए भी नज़र आई है, जिसके कारण ये दहेज जो गुजरात में है वहाँ पे इंस्टॉल किया है डरवन बॉक्स, जो ऑटोमेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कर लेती है ना। ऐसे लोग को खतरा भी लग रहा है कि एआई आने से मतलब बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारे लोग के जॉब जा सकते हैं, और कंपनीज़ को इससे कॉस्ट कटिंग में प्रॉफिट होगा, बट रिज़ल्ट की भी बात करेंगे। एंड अगर फाइनेंशियली परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियली परफॉर्मेंस है, जो कि 1 साल और 9 महीने का दिया गया है। 9 महीने FY 23 एंड 24, 9 महीने यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखते हैं तो 15% यहाँ इंक्रीज़ करते हुए नज़र आया था, और इविटा मार्जिन अगर 9 महीने का 1 साल का देखते हैं, 1 साल में ऑपरेटिंग रेवेन्यू इंक्रीज़ करते हुए नज़र आया था 23 से 24 में। एंड अगर हम 1 साल का देखते हैं तो ऑपरेटिंग इविटा या मार्जिन वो 17% डिक्लाइन हुई थी। अब पैट भी डिक्लाइन हुआ था 26% से 1 साल में। लेकिन यही डाटा ऑपरेटिंग रेवेन्यू का देखिए 9 मंथ के सिनेरियो में, जहाँ 15% इंक्रीज था वहीं 21% इंक्रीज है। जहाँ इविटा 15% की डिक्रीज़ थी वहाँ 6% इंक्रीज है, और जहाँ पैट 26% डिक्रीज़ था वहाँ 2% ही डिक्रीज़ है। तो ये डाटा तो हमें यही बता रही है कि कंपनी यूज़ कैपेक्स कर रही है, और कंपनी यूज़ कैपेक्स के कारण थोड़ा स्ट्रगल कर रही है इन अ प्रॉफिट सेगमेंट। दैट्स ऑल। एंड ऑपरेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी इनका पूरा क्लियर है, पूरा फोकस्ड कर रही है कि ग्रोथ सेगमेंट में ही पूरा फोकस्ड होके चल रही है। एंड आप एक बार इसके गो थ्रू हो जाना एक बार प्रेजेंटेशन को भी। मैं तो यहाँ सारा डील कर ही रहा हूँ, जैसा आप डायना प्राइम आप वो वाला वीडियो में भी देखे होंगे।
डायना प्राइम, डायना स्टील, डायना वियर, डायना पल्प, ये सब मील लाइनर वाले सेगमेंट में आता है, जो कंपनी यहाँ पर ये एक मोनोपोली क्रिएट करती है। और दूसरा सेगमेंट आ जाता है हाइड्रोसाइक्लोन, हाइड्रोसाइक्लोन वाले सेगमेंट में भी है। मतलब जस्ट लाइक अ यूनिक बिजनेस ये कर रही है। अगर इसका डायरेक्ट पीयर्स से कंपेयर करोगे तो कोई एज ऑफ नाउ कोई लाई नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली इसके पीयर्स हैं। तो ये इनके प्रमोटर या इनके सीएफओ ने डायरेक्टली बताया है कि मेरे पीयर्स AIA इंजीनियरिंग को ये मानते हैं अपने पीयर्स। अगर आप AIA के सारे अगर शेयर प्राइस की अगर बात करें तो वो 3000 के आसपास ट्रेड हो रही है शायद, आई थिंक सो। और ये ऑलमोस्ट 1500 के आसपास पहुंच गई है। मैंने लास्ट वीडियो जब क्रिएट किया था मैंने एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें इसकी प्राइस चल रही थी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, और मैंने उसमें टारगेट दिया था 1 ईयर का 1400 का, जो कि हमारे दो महीने में ही ये टारगेट अचीव हो गया। बट उसके बाद कुछ रिजल्ट में डिक्लाइन फेज आई थी और फिर भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ये करती है 3 जगह पे, चिली, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और डोमेस्टिक में गुजरात यानी दहेज में है, कोलकाता में इनकी मेन ब्रांच भी है। कोलकाता से ही ये कंपनी निकली है। और मतलब और कोलकाता में शामली में है और कल्याणी में है। इनके 2 ब्रांच, दो एक्विजिशन इन्होंने किया था कोलकाता में 1985 में शामली में, और कल्याणी में इन्होंने किया था 1978 में। कल्याणी में ये जो दोनों जगह जो कंपनी चलाते हैं, ये ऑब्वियसली ये तीनों जगह जो कंपनी चलाते हैं, एक दहेज वाला भी, उसमें मील लाइनर वियर प्रोडक्ट, स्क्रीन और ये सब सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर जो कल्याणी वाले जो ये हैं सेगमेंट हैं, तो इनमें ये मील लाइनिंग और डायना प्राइम एंड हाइड्रोसाइक्लिन वाले भी हैं, पंप लाइन लीनर्स भी है, लीनर। तो ये सारे देख सकते हैं। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में टेगा जो मैकनली माइनर्स लिमिटेड जो नया कंपनी ओपन किया है, तो वो बड़ौदा में किया है, गुजरात यानी कर्नाटका बेंगलुरु में किया है, आसनसोल वेस्ट बंगाल में है एंड झारखंड। तो ओवरऑल देख सकते हैं आप, इंडिया में तो हैं ही, और इंटरनेशनल भी ये कंपनी अच्छे खासे इंटरनेशनल में भी अपने मार्केट शेयर जमा रखी है। और अगर आप इसके थोड़ा सा सेल्स कैपेसिटी को देख लें, सेल्स कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है और इनके रिपीटेड ऑर्डर काफ़ी आते हैं। जॉइंट वेंचर इन्होंने 1991 में किया था, पहला जॉइंट वेंचर, और फिर उसके बाद 6 में एक्विजिशन करना चालू किया, और फिर ऐसे करके ये कंपनी बनते हुए नज़र आई है। 23 में भी फिर देख ही रहे हैं, ये एक्विजिशन रोके नहीं है। मतलब मिलर्स नई कंपनी जो ओपन किया 100% स्टेक है। स्टेक वाला सेगमेंट भी तो मैं चर्चा कर ही दिया था आप लोगों के साथ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। और ये रहा, यहाँ पर ये टेगा इंडस्ट्री, ये 3 कंपनी ये बनाते हैं। एक कंपनी ये पहले मतलब 2000 जो अभी 23 में एक्वायर किए हैं ये जो कंपनी, और ये सबसे पहले ये एक्वायर किए थे। ये इसमें 50% ये जॉइंट वेंचर के साथ हैं। और ये जो होल्डिंग कंपनी बनाया है, इसमें 3 कंपनी को ये होल्ड करते हैं। एक टेगा इंडस्ट्री अफ्रीका प्रोप्राइटर लिमिटेड, टेगा इंडस्ट्री चिल्ली लिमिटेड, और टेगा इंडस्ट्री हॉजन प्रोप्राइटर लिमिटेड। ये सारा चीज़ आप समझ गए। एंड फिर यहाँ आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे आपको पता चलता है, थोड़ा सा डाटा की हम बात कर ही लिए थे, एंड डेवलपमेंट ये सारी चीज़ मैंने चर्चा कर लिया था। एंड गोइंग, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कंपनी का यूज़ ग्रोथ हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, तो इंटरनल फंड से ही कर रही है। उसके लिए कंपनी अपने डेट को नहीं बढ़ाई है। अगर आप इसका CFO देखोगे, थोड़ा सा CFO में नज़र दोगे तो CFO भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग नज़र आएगा। तो मतलब CFO कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो CFO 2023 में CFO 6 करोड़ का नेट कैश फ्लो हुआ है, CFO हुआ है 63 करोड़ का।
अगर आप ऑपरेशनल देखते हो, ऑपरेशनल एक्टिविटी ये कर रहे हैं, 299 ऑलमोस्ट 300 करोड़ का जो आया है। और इसको ये कंपनी फिर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आई है 235 करोड़, जो कि इंटरनल, जो कि ये जहाँ से कमाई है उसको फिर से री इन्वेस्ट कर रही है। जो कंपनी अभी, कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट में देखें तो रिज़र्व काफ़ी कंपनी के अच्छे हो रहे हैं, जो कि पहले भी थे उसी के आसपास ही है, 20 करोड़ 30 करोड़ बढ़ा है, घटा नहीं है। और बोरोइंग तो एकदम जीरो हो गए हैं, पहले कुछ हुआ भी करते थे 2019 में, बट रिसेंट टाइम कंपनी के बोरोइंग जीरो हो गए हैं। और अगर हम एसेट की बात करें, फिक्स एसेट भी कंपनी का बढ़ते हुए यहाँ नज़र आ रहा है। CWIP में भी काम चल रहा है कंपनी का, एंड इन्वेस्टमेंट भी कंपनी अच्छा खासा कर रही है। अगर आप से एक नज़र शेयर होल्डिंग से पहले एक नज़र आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हो, तो यहाँ आपको नज़र आती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इसकी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रही है 154 करोड़ से 272 करोड़। बट नेट प्रॉफिट में क्यों, नेट प्रॉफिट भी अगर एक साल का देखते हैं 2023 का देखते हैं तो वो भी बढ़ते हुए नज़र आता है। बट रिसेंट क्वार्टर में अगर क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो दिस क्वार्टर बट अब सेल्स इंक्रीज हुई है, बट दे आर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर डिक्लाइन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर आल्सो डिक्लाइन। एंड अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन होते हुए नज़र आया है और EPS भी डिक्लाइन होते हुए नज़र आया। तो बट ऐसा क्या है कि शेयर प्राइस क्यों इंक्रीज़ हो रही है? तो शेयर प्राइस इसलिए इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि अगर आप इसके मतलब EPS तो इसकी डिक्लाइन हो रही है और जो इसके प्रॉफिट हैं वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, बट शेयर प्राइस इंक्रीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि ये कंपनी अपना ये जो कैपेक्स अपना यूज़ करते हुए नज़र आ रही है, तो उसके कारण ये शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। और इसकी रीरेटिंग हो रही है, रीरेटिंग पी होने के कारण जिसके इसके प्राइस नज़र आ रहे हैं, कंपनी अभी अपने इनिशियली को इंक्रीज़ करते हुए नज़र आई है, जो कि 55 ऑलमोस्ट 55 के आसपास हो गई है, जो कि अभी भी हमको सस्ता ही नज़र आ रहा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट जैसे जैसे प्रॉफिट कंपनी के आने लगते हैं तो कंपनी अपने फिर आगे चलकर कंपनी फिर यहाँ से अपने को डिक्लाइन करेगी और हो सके तो प्राइस थोड़े इंक्रीज होंगे और शेयर प्राइस ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू के पास आ जाएगा, क्योंकि कंपनी डिविडेंड यील्ड नहीं देती है और कंपनी टोटल पैसा री इन्वेस्ट करती है, जो कि कंपनी को बहुत अच्छा बनाता है। और कंपनी अगर आप कंपनी के ग्राफ को थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं तो मैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू खोला हूँ। ट्रेडिंग व्यू में मैंने चार्ट प्लॉट किया है, तो चार्ट प्लॉट में मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है ऊपर से लेके नीचे तक, और यहाँ पर आप जब देख रहे हैं जिगजैग पैटर्न को अगर हटा दिया जाए, इस पैटर्न से आपको नज़र आ रहा है कि ग्रोथ फेज में है, बट इस पैटर्न को मैंने हटा दिया तो ये यहाँ पर ये जो पैटर्न बना रहा है ये डोर बॉक्स पैटर्न बना रहा है, क्योंकि यहाँ एक बॉक्स क्रिएट कर रहा है, यहाँ जब बंद कर रहा है ग्रीन कैंडल बना रहा है, अप ट्रेंड ले रहा है, बॉक्स क्लोज लार्ज नहीं मार्केट जाएगी, बट दिस कैंडल वीकली टाइम फ्रेम दैट इज क्लोजिंग इस मार्केट में ऊपर गई है और हमारे टारगेट तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन बट इन टारगेट नहीं चाहिए 2025 का टारगेट इन हम एक साल चाहिए, और क्योंकि कंपनी यूज कर रही है उससे प्रॉफिट जनरेट होगी। इस सेगमेंट में कंपनी हमेशा हर कंपनी किया है और अब बूम हुआ है। आप मेटल के कोई भी कंपनी को वेदांता देख लो, टाटा स्टील देख लो, ये बढ़ रहे हैं और ये मेटल सेगमेंट की एक टॉप कंपनी है एंड कंपनी से कैपेक्स होंगे और उससे रिटर्न चालू करेगी कंपनी का, तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी एंड वॉल्यूम तो भी चला और एक तो बन रहा है और यू कैप 10 करोड़ के मार्केट कैप पे ही अभी ट्रेड हो रहा है। आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में एंड फिर से मैं बताऊं अच्छा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए और कि हमें और हमारे टारगेट करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। बाय। चला दुखते नहीं एक तरह से बोल रहे हैं बोलते ही रहते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब है अंदर में क्या लैपटॉप हीट हो गया पूरा। लेकिन ये वीडियो दिखाने में ये किया रहेगा।